हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 11। इसमें जो आज हम करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो, 10th 11th 12th, सीबीएसई यूपी बिहार बोर्ड, किसी भी क्लास के बच्चे हो या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी में अगर उनके पास पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है तो ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उनके लिए होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में आपको आपके ही लैंग्वेज में समझाया जाता है। साथ में आपके समक्ष जो है डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपके लिए नोट डाउन करना भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता ही कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today our the most important chapter doing here Parliament of India. There is a Parliament of India here. The second point here, a function of Parliament. What is the function of the Parliament? There is the most important here. The function and power of the Indian Parliament can be divided into the legislative, executive, financial, and other category. There is the most important power here. Parliament here present. The first is a legislative function. The legislative function here. So basically the parliament is a law making body. There is a law making body of the parliament. In earlier lessons you have seen that there is a division of power between the center, union and state. There are three lists: union list, state list and concurrent list. There is a most important list here, the union list, state list and concurrent list. Only parliament can we make a law on the subject are mentioned in the union list. You know that the union list has a 97 subject. Along with the state legislatures, the parliament is empowered to make the law on their is a concurrent list. In case both the center as well as the state make a law on the subject the mentioned in the concurrent list, then the central law is prevails upon to the state as a law there in the class between the two. Any subject not mentioned in any list is a residual of power or is a vesting with their parliament. Important topic here is the function of executive. There is the most important parliament, the executive function. In a parliament system of government, there is a close relationship between the legislatures and the executive. And the executive is responsible for the legislatives for all its act. The Prime Minister and his counseling of minister are responsible to their parliament individually as well as collectively. The parliament can be dislodged or ministry by passing a vote of non-confidence or by refusing to the endorse a confident motion. In India, this has been happened several times. This happened in 1999 when the Atal Bihari Vajpayee's government lost the confidence motion in the Lok Sabha by just one vote to the resign. There is a most important here, but the non-confident motion or their confidence motion are extreme way of the maintaining accountability of the parliament over to the executive. They are employed in the explanations as a case. Parliament also maintain its control over executive in a routine manner through the several way. Some of them are flow. The first here, the member of parliament can ask questions and supplementary questions regarding any matter.
connected with the affair of the central government. The first year of every working day are parliament related to be question or in which the ministers have to answer the question arising by the members. And second is here, if the member are not satisfied with the government as an answer, then may be demanded a separate discussion on the subject. The parliament also exercises control over to the executives through a several motion. For example, calling attention, notice or adjustment motion are such a way by which the some recent matter of urgent public important are aside. The government is away and take those motion very seriously because the government as a policy are criticized severely and there is a likely to impact on the is electorate warm to the government would we have a face ultimately. If the motion is a pass, then it is a mean that the government is a censured. This censured is a motion here, the meaning, the motions, and this motion implies several is an indictment of the government, but it does not be require resignation of counseling of minister. The Lok Sabha can be expressed it is a lack of confidence in the executive by disapproving a budget or many bill, even a ordinary bill. The next point here, the financial function. The parliament perform important financial function. It is the custodian of the public money. It controls the entire purse of the central government. No money can be spent without its approval. This approval may be taken before the actually spendings or in the rare case after the spending. The budget is approval by their parliament every year. And the next year, the electoral functions here the elected member of parliament, one member of the electoral colleges of the presidential election. As such, there is a participate in a election of the president of India. They elected the vice president. The Lok Sabha elected the speaker and deputy speaker, and the Rajya Sabha elected the deputy chairman. The next year, power of removal. The content high functionaries may be removed from officially of the inactives of parliament. The president of India may be removed through the process of impeachment. You have read about the lesson 10. The judge of Supreme Court and High Court can be removed by order of the president, which may be a issue only if a resolution of their removal and passed by the both house of parliament by a special majority. The next year function regarding to the is the amendment of the constitution. The most of the part of the constitution can be amended by the parliament by a special majority, but contain a provision only be amended by the parliament with the approval of state. However, India being a federal state, the amending power of the parliament is highly limited. The Supreme Court has a rule that a parliament cannot be changed the basic structure of constitution. You have already read about their amending procedure in another lesson. The next year, miscellaneous function here. The besides above mentioned function in the parliament also perform a variety of other functions. Some them are follow. The first year, well, it is the power of the president to declare emergency. There are president of declare of emergency. The parliament approve all such a proclamation of emergency. Both the Lok Sabha and Rajya Sabha have to approve the proclamation. The next year, parliament may be form a new state by the separating the territory from any state or by uniting two or more states. It may be also change the boundaries and name of any state. In the recently year 2000, new state of Chhattisgarh, Jharkhand and Uttarakhand were created. The recently here is created by the Telangana is a Hyderabad as a difference, and the parliament may be admitted to the establish new state in the Indian Union. Sikkim is in 1975. The parliament can be abolished or create legislative council in the state. This is done only on the request of the concerned state of assemblies. Thus, the Indian Parliament, though the limited by the federal nature of political system, have a wide function for perform.
In performing its function, it has to be mirror of the aspirations and the need for the people of India. It is also has to be function as an agency for resolving social, economics, or political conflicts in the country. It is also help to the building of the instance of the specific issue which are the crucially to be nation like a foreign policy formulation. दोस्तों यहाँ पर हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संसद के कार्य। देखिए ये पार्लियामेंट जो है इसके रिगार्डिंग आया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आया है हमारा संसद के कार्य। तो हमें कार्य प्रणाली के बारे में जानना अत्यंत रोचक रहेगा। अगर हम बात करें संसद के कार्य प्रणाली के विषय में तो कहते हैं भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ जिसमें को जो विधायी, कार्यपालिका और संबंधी वित्त अन्य क्षेत्रों में जो है इसको विभक्त कर दिया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है विधायी कार्य, यानी विधानिक जो है शक्ति। ठीक है, मूल्यतः संसद कानून बनाने वाला संस्था माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे रूल रेगुलेशन को जो है बनाए जाते हैं। पहले के एक पाठ में आपने पढ़ा भी था कि केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजन किया भी जाता है, जिसके लिए 3 सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके बारे में आपको भी नॉलेज होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। जिसमें संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची इसमें सम्मिलित होती है। संघ सूचित में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास ही है। और आप जानते भी हैं कि संघ में सूची में जो है 97 विषय, जिसके हम पिछले चैप्टर में चर्चा भी किया। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसमें हमने हर एक बात पे जो है पहलू पे विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया था हमने। तो इसमें यही बात बताया गया था कि सूची में 97 विषय था और राज्य विधायकों के साथ साथ संसद भी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों ही अवरोधित है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता दी जाती है। ऐसा विषय जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है तो ऐसी अविशिष्ट शक्ति संसद के पास है। इस प्रकार संसद की कानूनी निर्माण संबंधी शक्तियां बहुत ही विस्तृत देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में भी वर्णित विषय भी आ जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष कार्यपालिका संबंधी कार्य। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिकाओं में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अपने सभी कार्य के लिए कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद और व्यक्ति तथा जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद जो है अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर मंत्रिपरिषद को जो है पदच्युत कर सकता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव रख के जो है मंत्रियों को जो है पदोन्नत कर सकता है, यानी पद से हटा सकता है। भारत में से कई बार भी हुआ है ऐसा। 1919 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक मत से लोकसभा विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रही थी, सिर्फ एक मत, और उसे त्याग पत्र दे दिया गया। अंत अविश्वास मत संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सर्वाधिक कठोर तरीका माना जा सकता है और इस प्रयोग का केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना सुनिश्चित किया गया है। नियत प्रति के कार्य में भी संसद कई प्रकार से जो है कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। उनमें से कुछ इस प्रकार देखा जा सकता है। केंद्रीय सरकार से संबंधित मामलों में किसी भी विषय के बारे में संसद प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें मंत्रियों को संसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। दूसरी आता है, यदि सदस्य सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों में संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह उस विषय पर जो है अलग से चर्चा करने की मांग कर सकते हैं। उसके पश्चात संसद कई प्रस्तावों को माध्यम से भी कार्यकारिणी पर नियंत्रण बनाए रखती है। उदाहरण के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तो कुछ ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा लोक महत्व को तत्कालीन आवश्यकताएं मामले उठाए जाते हैं। सरकार इन प्रस्तावों को बड़ी गंभीरता से लेती है क्योंकि इसमें सरकारी नीतियों की कड़ी आलोचना भी की जाती है, जिसका प्रभाव जनता पर भी पड़ता है और संसद के समक्ष कहते हैं आखिर तो सरकार को जानना ही पड़ता है। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित हो भी जाते हैं तो सरकार निंदनीय मानी जा सकती है। देखिए यहाँ पर निंदनीय का प्रस्ताव अब शब्द आया है तो इसका अर्थ क्या हुआ। इस प्रस्ताव का अर्थ सरकार की जो है तीव्र निंदा करना होता है।
परंतु इसमें मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम अंतिम पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो कहते हैं बजट तथा अथवा अन्य विधायकों यहाँ तक कि किसी साधारण विधायकों को भी अस्वीकार करके लोकसभा मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट कर सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वित्तीय कार्य। कहते हैं संसद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करती है और इसे सरकारी धन का संरक्षण माना जाता है। यह केंद्रीय सरकार की संपूर्ण आय पर नियंत्रण बनाए रखती है। बिना संसद की आज्ञा के कोई धनराशि व्यय नहीं की जा सकती है और यह स्वीकृति वास्तविक व्यय के पूर्व या फिर किसी असाधारण स्थिति में व्यय के पश्चात ली जा सकती है। संसद हर वर्ष सरकार के आय व्यय अथवा बजट की स्वीकृति प्रदान करती है। उसके पश्चात निर्वाचन संबंधी कार्य। देखिए संसद के सभी निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग भी लेते हैं। या कहते हैं निर्वाचन का मतलब दोस्तों यही होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य जो होते हैं भाग लेते हैं। वे उपराष्ट्रपति के भी चुनाव कराते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का, राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करता है। तो यानी कहते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियों भी इनके पास उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात है पद स्थगित करने की शक्ति, यानी जो है रिमूवल करने की पावर कैसे होती है। संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण जो है उत्तर स्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया से जो है पदच्युत किया जा सकता है, यानी महाभियोग ला के राष्ट्रपति को भी हटाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जिसके बारे में आप 10 में जो है विस्तार पूर्वक जाने भी थी और समझाया भी था मैंने। ठीक, अगर नहीं वीडियो देखा है तो उसको भी देख लेना, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करे तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष संविधान संशोधन संबंधी कार्य। कहते हैं संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन विषय बहुमत द्वारा किया जा सकता है, परंतु कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद द्वारा संशोधन के लिए राज्य का समर्थन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि भारत के एक संघ राज्य होने के नाते संसद की संशोधन संबंधी शक्तियां अत्यंत सीमित रखी भी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह भी कहा है कि संसद संविधान द्वारा मूल्य ढांचा नहीं बदल सकती है। आप एक अन्य पार्ट में संविधान संशोधन के संबंधी जो है काफ़ी पहलू के बारे में जानोगे, जो हम आने वाले सिलेबस में करेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष विविध कार्य। देखिए और भी कार्य बहुत से होते हैं जो संसद द्वारा निभाई जाती है। उपयुक्त कार्य के अतिरिक्त संसद कई अन्य कार्य भी करती है, जैसे कि यद्यपि आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति की ही है। यद्यपि आपातकाल की सभी ऐसी घोषणाओं को स्वीकृति संसद ही प्रदान करती है, यानी संसद ही स्वीकृति देती है जो है आपातकालीन कराने की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति आवश्यक होता है। अगर आप समझ सकते हो साधारण लैंग्वेज में कि अगर आपातकालीन घोषणा करना है तो आपको लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से जो है अनुमति लेने की आवश्यकता होती है और इसमें वोटिंग की जाती है। वोटिंग में अगर विजय होते हैं तो आपातकालीन घोषणा करने के लिए प्रावधान उपस्थित हो जाती है। किसी राज्य से कुछ क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर संसद किसी नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। ये भी शक्ति जो है संसद के पास ही है। यह किसी राज्य की सीमा अथवा नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे कुछ वर्ष 2002 में जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल नए राज्य बने थे। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही तेलंगाना को भी जो है नए राज्य में जो है परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि हैदराबाद के ये पार्ट था और हैदराबाद से अलग करके इसको है तेलंगाना को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। संसद किसी नए राज्य का विलय भारतीय संघ में कर सकती है, जैसे कि 1975 में सिक्किम को भारत में विलय कर दिया गया था, यानी एक नया अलग राज्य था सिक्किम, लेकिन बाद में जो है 1975 में इसको भारत का जो है पार्ट बना दिया गया। कहते हैं अगर संसद राज्य विधान परिषद की समाप्त भी कर सकती है अथवा इसका निर्णय भी कर सकती है, परंतु यह केवल संबंधी राज्य के अनुरोध पर ही किया जा सकता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की संघात्मक प्रकृति के कारण यद्यपि संसद की शक्तियां सीमित है, यद्यपि इसके अनेक कार्य करने होते हैं
और अपना दायित्व निभाते समय इसे जनता की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान भी रखना पड़ता है। देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों के हल करने का माध्यम संसद ही है। विदेशी नीति निर्माण जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर जनमत निर्णय करने का भी सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, यहाँ पर संसद की कार्य प्रणाली बहुत विस्तृत थी और बहुत ही रोचक थी, जिसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण था आपके लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, वो पहली बात तो ये है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का उद्देश्य है कि ये वीडियो हर बच्चों तक पहुँचे और वो भी बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो। दूसरी बात ये था कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके भी चैनल को सेव करना आपका दायित्व बन जाता है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगता था, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी करोगे तो मेरे वीडियो वहाँ पर प्राप्त नहीं होंगे। वहाँ पर वो वीडियो आएंगे जो पहले से ही यूट्यूब पर बने पड़े हैं। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जहाँ भी सब्सक्राइब करने के पश्चात अगर जाओगे मेरे चैनल पे तो वहाँ पर जो है आपको वीडियो का ऑप्शन होगा। अगर वीडियो का ऑप्शन दबाओगे तो वहाँ पर वो सारे वीडियो आपको नजर आएंगे जो तिरपान स्टडी सेंटर के द्वारा जो है डाले गए हैं। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के रिगार्डिंग होगा उसको सेव करके आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो।